عزیزان ملت اسلامیہ، سامعین محترم، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے اپنی مرضی سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں جہاں جسے جب چاہا جیسے چاہا پیدا فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اشرف المخلوقات ہی نہیں بلکہ اشرف الامت بھی پیدا بنایا، اور ہمارے لیے رشد و ہدایت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الانبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور اس کے عطا پر صبر کرتے ہوئے اس کی مکمل بندگی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک نہایت ہی مشہور و معروف آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جسے آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا معنی یہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، یقین جانو کہ بے شک دلوں کا چین، دلوں کا سکون و قرار اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا کہ یقیناً خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ تمہارے دلوں کا چین و سکون جو ہے، قرار جو ہے، وہ اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر اسی پر گفتگو آپ سماعت پائیں گے، مگر آئیے گفتگو سنید کو آگے بڑھانے سے قبل جس طرح سے میں آپ تمامی حضرات کو پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ تمہارے دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت پاک کوئی آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے یا آج کے ماحول کی وجہ سے نہیں اتری ہے، بلکہ یہ آیت پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس وقت میں نازل فرمایا جب عرب کی سرزمین پر بالخصوص مکہ معظمہ میں، حجاز میں کفر الحاد کا دورہ تھا، شرک اور کفر کا اس طرح سے بول بالا تھا کہ اللہ کا نام لینے والا بمشکل ہی کہیں نظر آتا تھا۔ اس وقت میں لوگ اس طرح سے گناہ میں اور اس طرح سے جو ہے تو گناہ کی محفلوں میں مو ہو گئے تھے، کھو گئے تھے، اور لوگوں کے دل اس طرح سے پتھرا گئے تھے کہ ان کے دل سے محبت نام کی چیز نکل چکی تھی، ان کے دل سے خوف خدا نام کی چیز نکل چکی تھی۔ اس وقت میں لوگ اس جو پتھرائے ہوئے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے کوئی شراب نوشی کرتا نظر آتا تھا، کوئی قتل کرتا نظر آتا تھا، کوئی ناچتا ہوا نظر آتا تھا، کوئی چیخ پکار کرتا نظر آتا تھا، کوئی ایک نہیں بلکہ سینکڑوں بتوں کی پرستش اور پوجا کرتا ہوا نظر آتا تھا، کوئی کسی کو اس طریقے سے جو تو کسی پر ظلم اور بربریت کا پہاڑ دھولتا ہوا نظر آتا تھا، اور کوئی جو ہے تو اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح سے ذلیل اور رسوا کر کے گھر سے باہر نکالتا ہوا نظر آتا تھا، کوئی اپنے ننھی ننھی بچیوں کو قتل کرتا ہوا نظر آتا تھا، اور اس طرح سے کوئی کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کرتا نظر آتا تھا، کوئی کعبۃ اللہ کے اندر اپنے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو رکھنے میں جو ہے تو اس طریقے سے رکھتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسے کفر الحاد کے دورہ میں، ایسے گمراہیت کے دور میں، ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے انسانوں کے جو ہے تو دور میں، ایسے اس طریقے سے ظلم کا ننگا ناچ ناچنے والے اور گناہوں میں جو ہے اپنے دل کا سکون تلاش کرنے والوں کے اس دورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ آیت پاک نازل فرمایا کہ میرے محبوب تم ان کو سنا دو میرا یہ کلام پڑھ کر کے، یہ پیغام الہی پیغام
کرنے والوں، اے بے چین دلوں کا چین تلاش کرنے والوں، اے بے سکون دلوں کا سکون تلاش کرنے والوں، سن لو کہ تمہارے دلوں کا چین نہ تو بت پرستی میں رکھی گئی ہے، نہ تو شراب نوشی میں رکھی گئی ہے، نہ تو جوا خوری میں رکھی گئی ہے، اور نہ بچوں کو قتل کرنے میں رکھی گئی ہے، نہ اپنے گھر کی بیویوں کو بے حیائی کے ننگا ناچ ناچنے پر مجبور کرنے میں رکھی گئی ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا چین اگر رکھا گیا ہے تو اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے. تمہارے دلوں کا چین اگر پوشیدہ کسی چیز میں ہے تو اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے. لہذا تم بت پرستی کو چھوڑ دو، اے قتل غارت گری کرنے والوں قتل غارت گری کو چھوڑ دو، اے جھوٹ کا جو ہے تو بازار گرم کرنے والوں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اے جوا خوری کرنے والوں جوا کھیلنا چھوڑ دو، اے شراب نوشی کرنے والوں تم شراب نوشی کرنا چھوڑ دو. ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے بعد تم بس ایک اور واحد اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرنا شروع کر دو. یقیناً تمہارے دل کا چین تمہیں میسر آ جائے گا، تمہارے بے قرار دل کا قرار تمہیں میسر آ جائے گا، تمہارے دل کا سکون تمہیں میسر آ جائے گا. میرے عزیزو میرے دوستو ذرا غور کریں، وہ دور کیسا پرفتن دور تھا جب ایک باپ اپنی ننھی سی بچی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کرتا تھا، جب ایک ماں اپنے بچی کو قتل کر دیا کرتی تھی، جب ایک باپ اپنے جو ہے تو بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھڈا کھود کر کے دفن کر دیا کرتا تھا. بتائیے وہ دل کیسے پتھرائے ہوئے دل رہے ہوں گے، وہ دل کیسے جو ہے اس طریقے سے محبت سے دور جو ہے تو اور نشے میں اور گناہوں کے نشے میں چور ہوئے رہے ہوں گے. مگر وہ یقین جانیے کہ جس وقت میں اللہ کے نبی نے، ہمارے آقا مولا نے اللہ کے پیغام کو ان لوگوں کے سامنے بیان فرمایا تو ہر کس و ناقص اس بات پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اس میں کون سی ایسی جاتیت ہے، اس میں کون سی ایسی چاشنی ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی دعوت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہم کو دے رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کو چین آ جائے گا. ذرا کر کے تو دیکھیں، کچھ لوگ کرنے پر آمادہ ہو گئے، کچھ لوگ غور فکر کرتے رہ گئے. میرے دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کے تعلق سے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر دل پتھرایا ہوا نظر آتا تھا، ہر آنکھ پتھرا چکی تھی، ہر جو ہے تو انسان سنگ دل ہو گیا تھا، ہر ہاتھ میں پتھر نظر آتے تھے، ہر پیشانی پر غروریت اور مغروریت کے بل نظر آتے تھے، ہر ہاتھ میں تلوار نظر آتی تھی، ہر جگہ شراب کی بوتلیں اچھالی جاتی تھی، ہر جگہ ننگا ناچ ناچا جاتا تھا، اور اس طریقے سے رقص و سرور کی محفل جو ہے تو منعقد کر کے اس پہ کیف و سرور حاصل کر کے دل کا چین تلاش کر رہے تھے. مگر ایسے دور میں جب قرآن مقدس کی آیتوں کو نبی علیہ السلام نے اپنے زبان ترجمان سے سنائی، پیغام حق کو جب ان کے سامنے اعلان کیا اور کہا کہ تم کہاں سکون تلاش کرتے ہو، آ جاؤ اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ لو اور اس کا ذکر کرنا شروع کر دو. تمہارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، تمہارے جو ہے تو بے چین دل کو چین آ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سننے کے بعد وہ پتھرائے ہوئے انسان، وہ جو ہے تو سنگ دل انسان اور وہ رقص و سرور کی محفلوں میں بیٹھنے اٹھنے جانے والے انسان اس پر غور و فکر کرنا جب شروع کر دیا تو ایک ایک کر کے یوں ہو گیا کہ کچھ تو داخل اسلام ہو گئے، کچھ اللہ کا ذکر کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور کچھ لوگ سن کر کے ذکر الہی کو سنا کرتے، چھپ کر کے ذکر الہی کو سننے پر مجبور ہو گئے کہ جب قرآن کوئی مسلمان پڑھتا، جب اس وقت کوئی صحابہ رسول اپنے گھر پر قرآن پڑھتے تو کہیں جو ہے تو گھر کے کھڑکی کے پاس، کہیں گھر کے جھروکے کے پاس وہ کفار مشرکین بھی آ کر کے چھپ کے سنا کرتے کہ آخر اس میں کون سی ایسی بات ہے، ایسی کون سی اس میں جو ہے تو چاشنی ہے. اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد دل کو قرار مل جاتا تھا. یہاں تک کہ جو چھپ کر کے سننے آتے تھے اور سننے والے بھی سنتے سنتے ان کو ایسے رغبت حاصل ہوتی، ایسے دل کو قرار اور سکون میں اثر آتا، وہ آئے تھے چھپ کر کے سننے کے لیے. مگر جب قرآن مقدس کی تلاوت کو سنتے، اللہ کے ذکر کو سنتے، حبیب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے تو زبان سے نکلنے والے کلمات کو جب سنتے تو وہی لوگ جو کبھی جو اسلام سے دور تھے، دشمن اسلام بنے بیٹھے تھے، جو اسلام کے خلاف تلوار کھانے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، وہی چھپ کر کے سننے والے اتنا قریب ہوتے کہ جب تلاوت کرنے والا تالی و قرآن جب جو ہے تو اس طریقے سے قرآن کا پڑھنا موقوف کرتا تو کہتے کہ ایک مرتبہ اور پڑھ دو، تھوڑا سا اور پڑھ دو، ذرا ایک بار اور پڑھ دو. جب اس طرح سے بارہا وہ سننے کے لیے اصرار کرتے اور سنائے جاتے تو ان کی انتہا یہ ہوتی کہ دل کو ایسا سکون ملتا کہ کفر ہاتھ کو چھوڑ کر کے، شرک اور کفر کی محفل کو چھوڑ کر کے، شرک اور کفر کے عقیدے کو چھوڑ کر کے وہ داخل اسلام ہو جایا کرتے تھے، وہ داخل اسلام ہو جایا کرتے تھے، وہ کلمہ کو مسلمان بن جایا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کو جو کبھی دشمن
बने थे वो जो है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के यार बन जाया करते थे, उनके जो है तो उनके आगे पीछे घूमने और मंडाने वाले बन जाया करते थे, जैसे कोई परवाना जो है तो शम्मा के करीब घुमा करता था। इस तरीके से वही लोग जो कभी दुश्मन इस्लाम थे, जब हकीकत इस्लाम को जाना तो इस तरीके से महबूब खुदा अलैहिस्सलाम के जो है तो इर्द गिर्द परवाना वार घूमने वाले बन गए, उन पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले बन गए और उनके लाए हुए दीन की खातिर अपनी गर्दन कटाने वाले बन गए। जरा गौर तो करो मुसलमानों, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो जो है जिस तरीके से नंगा नाच नाचने वाले नहीं हैं, हम तो अपने बहू जो है अपने बच्चों को कत्ल करने वाले नहीं हैं, हम तो अपने जो है तो बहू बेटियों को की इज्जत को नीलाम करने वाले नहीं हैं, हम तो कुफ्र और शिर्क की दुनिया में खोए हुए नहीं हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो खानदान इस्लाम से हैं, खानदान मुसलमान से हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे बाप दादा भी मुसलमान थे, हमारे बाप दादा के दादा भी मुसलमान थे, हम तो मुसलमान घराने में पैदा किए हुए हैं, हम तो इस्लाम की दुनिया में जो बात खोले हुए हैं। मगर ऐ मेरे दोस्तों, आज क्या वजह है कि आज का बहुत देर हमारा इस्लामी भाई अपने दिल का सुकून तलाश करने के लिए कोई शराब खाने में जाया करता है, कोई जुआ खाने में जाया करता है, कोई रक्स सुरूर की महफिल में जाया करता है, कोई नाच गाने की मजलिस सजाया करता है। आखिर वजह क्या है कि उस वक्त में वो लोग जिनके पास जब ऐलान इस्लाम इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा था, जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, उस वक्त वो कुफ्र की दुनिया में डूबे हुए थे और शिर्क की दलदल में डूबे हुए थे। मगर जब उन्होंने दावत इस्लाम को जो है उन तक पहुंची और उन्होंने अल्लाह के पैगाम को जब सुना तो उस दलदल से निकल करके और जो है तो इस्लाम के लिए रोशन सितारे बनते हुए नजर आए और उनके दिल की दुनिया बदल गई। आखिर हमारे दिल की दुनिया क्यों नहीं बदल रही है? आखिर क्या वजह है कि हमें वो बीमारी कैसे लग गई, हम उस मर्द में कैसे मुब्तला हो गए जो मर्द 1400 बरस पहले जिस मर्द का इलाज किया जा चुका है, आज दोबारा हम उसके मरीज कैसे हो गए, आज हमारे दिलों को मर्ज कैसे लग गया। तो मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वजह मर्ज को तलाश करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट कराने के लिए जरूरत नहीं है, कोई सोनोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सरे निकालने की जरूरत नहीं है, कोई MRI कराने की जरूरत नहीं है, कोई सिटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने गिरेबान में झांक लेने की जरूरत है, अपने दिल की तरफ देखने की जरूरत है। हमारे दिल में आखिर क्या मर्द लग गया है, हमारे दिल में आखिर क्या बीमारी पैदा हो गई है, आखिर वजह क्या है? इतनी पुरानी बीमारी आज दोबारा लौट कर हमारे घरों में कैसे पहुंच गई? इतनी पुरानी बीमारी आज दोबारा लौट करके, कभी वो पुरानी बीमारियां उस पुराने दौर में जो 1400 बरस पहले का दौर था, उसमें उस दौर में जो है तो वहां के इंसानों को ये बीमारियां लगी थी। वो जो है तो शराब पी करके चैन तलाश करते थे, सुकून तलाश करते थे, वो जो है तो जुआखोरी करके, वो कत्लखानाखोरी करके, वो ज़िना करके, अय्याशी करके, वो सुकून तलाश करने में जो है तो के मरीज हो गए थे। आखिर हम उसके मरीज कैसे हो गए? आज का मुसलमान इस मर्द में कैसे मुब्तला हो गया? तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और झांक करके हम ये देखें कि दिन में कितनी मरतबा हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, कितनी मरतबा हम जिक्र मुस्तफा करते हैं, कितनी मरतबा हम कुरान पढ़ते हैं, कितनी मरतबा हमारी ज़बान से अल्लाह का जिक्र होता है, कितनी मरतबा हम कलमा तय्यबा दोहराते हैं, कितनी मरतबा हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। हम सिर्फ अपने गिरेबान में झांक करके देख ले, मर्ज का पता चल जाएगा कि वजह मर्ज क्या है, आखिर ये मर्ज लगा कैसे। मेरे दोस्तों, आज भी वक्त है हम अपने गिरेबान में झांकने के बाद जब इस बीमारी का हमें पता चल जाए, और यकीनन पता चल जाएगा और पता चल ही गया है, जो जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, वजह बीमारी यही है कि जितने खुदा से जिस कदर इंसान दूर होता है, उस कदर इस तरह से शैतानियत और मजबूरियत का मरीज बनता चला जाता है। उसका सुकून दिल जो है, कल्ब का सुकून उसका गारत होता जाता है और उस सुकून को तलाश करने के लिए कोई इस तरीके से जो है तो गुनाहों के अड्डों पर जाना शुरू करता है और कोई खुद अपने घरों को गुनाहों का अड्डा बना लिया करता है। नहीं देखते आप, आज घर घर में अल्लाह अकबर सिनेमा घर बना हुआ है, आज घर घर जो है सिनेमा घर बना हुआ है। जिन घरों से अल्लाह के जिक्र की आवाज बुलंद होती थी कभी और होना चाहिए था, आज उन घरों से नाच गाने की आवाज बुलंद होने लग गई है। जिन ज़बानों से अल्लाह का जिक्र जो है तो किया जाना चाहिए था, आज उन ज़बानों पर जो है तो गाने और गजलें आने लगी हैं। आखिर ये इंसान, आज का मुसलमान मरीज नहीं होगा तो और क्या होगा? और जानते हो, जब कोई इंसान तंदुरुस्त और तवाना होता है, जब हर एतबार से कोई इंसान तंदुरुस्त होता है, तवानाई का मालिक होता है, तो किसी गैर इंसान की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसकी गर्दन मरोड़ दे या उसका पंजा मरोड़ दे या उसकी जो है तो खीसे में
हथ डाल करके उसके जो है तो दौलत को छीन ले, या उसके जो है इस तरीके से किसी तरह से उसके किसी से उसका कोई भी सरमाया निकाल ले, उसकी हिम्मत नहीं बनती जब तक कि इंसान सामने वाला तंदुरुस्त होता है। और जब वही इंसान ज़ईफ हो जाता है, कमजोरी का शिकार होता है, जब उसको तरह तरह का मर्ज लग जाता है, मरीजी के वक्त में, ज़ईफी के वक्त में, कमजोरी के आलम में, अगर वही इंसान एक मामूली सी रकम भी लेकर निकलता है तो एक छोटा सा बच्चा भी आजमाइश करने की कोशिश करता है कि ये कमजोर आदमी मेरा क्या कर लेगा, बस दौड़ करके जाता हूँ, झपट के लेके भाग जाता हूँ, मैं तो इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, मैं तो इसकी कलाई मरोड़ दूंगा, मैं तो इसके जो है तो सरमाए को छीन लूंगा, मैं तो इसकी मताए जिंदगी को छीन लूंगा। उसकी हिम्मत बढ़ती है और वो पहुंच करके उस कमजोर इंसान को दबोच लेता है, और दबोचने के बाद उसके खीसे से उसका सरमाया भी निकाल लेता है, और इसके अलावा जो कुछ उसके पास होता है सब कुछ छीन करके उसको धक्का मार के निकाल देता है और उसे झुकने पर मजबूर कर देता है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में मुसलमानों के साथ कुछ इस तरह से लोग करने पर आमादा होते जा रहे हैं, कहीं किसी को झुका करके, कहीं किसी जो है तो बुत के सामने झुकने पर मजबूर कर रहे हैं, कहीं जो है तो इस तरह से शिर्क और बिदअत करने पर मजबूर किए जा रहे हैं, किसी तरह से कहीं पर जो है जिस तरीके से घर वापसी के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों के ईमान और अकीदे को खराब किया जा रहा है। आखिर ये मुसलमान होकर इसमें आमादा कोई कैसे हो गया है, कैसे कोई मुसलमान ने गवारा कर लिया कि वो जा करके धर्म परिवर्तन के नाम पर कहीं जमा हो जाए, कैसे उस परस्ती को कोई तस्लीम कर सकता है? इसकी वजह यही है कि वह ईमानी एतबार से इतना कमजोर हो गया है कि एक मामूली सा इंसान भी आकर उसको खुद के सामने झुकाने की हिम्मत कर रहा है, वरना किसमें हिम्मत थी कि मुसलमान के एक बच्चे को भी कहीं बुत परस्ती करने पर आमादा कर सकता। इससे पता ये चला वो किसी की ताकत का मुजाहिरा नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी कमजोरी का जो है तो यहाँ पर इजहार हो रहा है। ये हमारी कमजोरी कहाँ से आ गई? कमजोरी वहां से आई जहां से हमने जिक्र इलाही करना छोड़ दिया, जिक्र मुस्तफा करना छोड़ दिया, जहां से हमने दुरूद और सलाम का पढ़ना छोड़ दिया, जहां से हमने कुरान का पढ़ना छोड़ दिया, जहां से हमने नमाज के अपने रुख को मोल दिया। जब से हमने नमाजों से दूरी अख्तियार की, तब से हमारा बदन भी कमजोर हो रहा है और हमारा ईमान भी कमजोर हो रहा है और अकीदा भी इस तरीके से मुतमिल हो रहा है। मेरे दोस्तों, आज भी वक्त है कि मुसलमान मस्जिद को भरने वाले बन जाए, मुसलमान मस्जिद में सजदा करके उसको आबाद करने वाले बन जाए, मुसलमान अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करने वाले बन जाए। बिलखुसूस मेरी माँ और बहनें आज जो सीरियल को देखने के लिए अपने काम धंधे को छोड़ दिया करती हैं, आज जो प्रोग्राम टीवी पर आने वालों को देखने के लिए अपने बाल बच्चों को भूखा प्यासा छोड़ देते हैं, आज जो इस तरीके से हमारी माँ और बहनें घर में कुरान रखा हुआ होता है, उनसे पूछ लो कि इस कुरान में कितनी सूरतें हैं, तो बमुश्किल ही शायद कोई खातून पेश कर बता दे कि इस कुरान में इतनी सूरतें हैं। किसी से पूछ लो इसमें कितनी आयतें हैं, तो शायद कोई मुस्लिम खातून ऐसे होगी। पूरे इस गली में बात करता हूँ तो खुदा न करे कि पूरे मोहल्ले में ऐसा हो जाए कि उसको पता हो कि कुरान में कितनी आयतें हैं। मेरे दोस्तों, मगर उसी से पूछ लो कि जो है तो टीवी के अंदर किस वक्त में कौन सा सीरियल आता है, कौन सा कुरान चलता है, तो तुम पूछोगे एक तो बता देगी, 4 6 10 बता देगी औरत। मेरे दोस्तों, लिहाजा बुरा नहीं मानना, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बरा इस्लाम कह रहा हूँ। आए ख़वातीन इस्लाम, आए हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की मुक़द्दस जो तो कलीज़ाओं, जरा गौर से सुनो। औरतें जो होती हैं वो चाहे तो घर को जन्नत बना दे और चाहे तो घर को जहन्नम बना दे। मेरे दोस्तों, हमारे आज इस्लामी ख़वातीन अगर इस बार को उठा ले, इस जिम्मेदारी को संभाल ले, तो अपने घर को जन्नत का गहवारा बनाएगी। तो इंशाअल्लाह जब बच्चा उनके घर में स्कूल से आएगा, देखेगा कि मेरी माँ कुरान पढ़ रही है, मेरी माँ कुरान जो तो तस्बीहात कर रही है, मेरी माँ खाना भी अगर पका रही है तो उस वक्त टीवी नहीं चालू है बल्कि कुरान के औरात पलट रही है। मेरी माँ जो है इस तरीके से अगर कपड़ा भी सिलाई कर रही है, कपड़ा प्रेस कर रही है, अगर घर में दीगर काम कर रही है तो काम भी कर रही है और अल्लाह का जिक्र भी कर रही है। वही बच्चा आने के बाद उसके दिल पर एक जो है तो असर पड़ेगा, उसके कल्ब मुस्तहिर पर, उसके कल्ब बेकरार पर एक करार की मोहर लगेगी और वो सोचेगा जरूर कि ये जो मेरी माँ ये कर रही है, कि खाना भी बना रही है, जिक्र खुदा भी कर रही है। इसका मतलब यह है कि खाना बनाने के वक्त में जिक्र खुदा किया जा सकता है, काम करने के वक्त में, मोती पिरोने के वक्त में भी जिक्र खुदा किया जा सकता है। जब मेरी माँ इतना काम करने के वक्त में जिक्र खुदा कर रही है तो मैं आराम करने के वक्त में जिक्र खुदा क्यों ना करूंगा? जब बच्चा आएगा अपने बिस्तर पर जाने से पहले जिक्र खुदा करना जरूरी समझ लेगा। और जिस दिन से माशरे में इस तरह का माहौल बन जाएगा तो किसकी हिम्मत है? अरे मोदी के पिट्ठुओं
मुसलमानों की तो बात छोड़ो, अगर मोदी भी आएगा तो एक अगला मुसलमान को गैर मुसलमान नहीं बना सकता है। मेरे दोस्तों, आज ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। आज हम मुसलमानों में बिलखुसूस नौजवानों को इस जिम्मेदारी को उठाने की जरूरत है। इस जिम्मेदारी को महसूस करो। छोड़ दो दुनिया भर की रंगलियों को, आज छोड़ दो तो गुनाहों की मजलिसों को। आ जाओ मस्जिदों में, आओ ऐसी नेक मजलिसों में, बाबरकत मजलिसों में। इंशाअल्लाह अगर ऐसी मजलिसों के पाबंद हो जाएंगे तो दिल हमारा सुकून हासिल करने वाला बन जाएगा और उसको आदत पड़ जाएगी कि न नाच में सुकून है, न गाने में सुकून है, न शराब में सुकून है, न अय्याशी में सुकून है। सुकून है तो जिक्र खुदा में सुकून है, क्योंकि ये किसी मौलाना और मुफ्ती साहब ने नहीं कहा है, बल्कि जो है तो हमारे परवरदिगार ने कहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसने हमें पैदा फरमाया उसने कहा है कलाम ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे क़ुलूब, तुम्हारे क़ल्ब, तुम्हारे दिलों का सुकून अगर चैन है तो अल्लाह के जिक्र में रखा गया है। इसलिए मेरे दोस्तों, और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ, दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ जब तुम्हें बुलाया जाए। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, खुदा ऐ मुसलमानों, अपने आप को जिक्र खुदा के लिए तैयार कर लो, अपने आप को जिक्र इलाही के लिए तैयार कर लो, कुरान मुकद्दस की तालीम और तिलावत करने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। जानते हो ये ऐसा माहौल जो बनेगा और ये ऐसा अमल है कि जिस अमल के करने से पहले अगर कुरान भी पढ़ना है तो बंदा पहले पाक साफ होना जरूरी समझेगा, इसलिए कि नापाक आदमी कुरान को छू नहीं सकता है। एक मुसलमान जब कुरान पढ़ने का इरादा करेगा, अगर वो पाक भी है तो फिर भी अगर वजू नहीं है तो वजू करना जरूरी है उसके लिए, तो वजू करने जाएगा। और नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब कोई मेरा उम्मती वजू करता है तो वजू करने के सबब से उसके आज़ाए वजू से गुनाह उसके झड़ जाया करते हैं। बताइए जब गुनाह झड़ जाएंगे तो इसको कितना सुकून मिलेगा, जब गुनाह झड़ जाएंगे तो चेहरे को कितना सुकून मिलेगा, जब गुनाह झड़ जाएंगे, जब कुल्ली करता है तो ज़बान को कितना सुकून मिलेगा, जब गुनाह झड़ जाएंगे, जब मसा करता है तो सर को कितना सुकून मिलेगा, जब गुनाह झड़ जाएंगे, जब हाथ धोता है तो हाथों को कितना सुकून मिलेगा, जब गुनाह झड़ जाएंगे, जब पैर धोता है तो पैर को कितना सुकून मिलेगा। मेरे दोस्तों, अब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जिस तरीके से किसी पानी में रहने वाली मछली को जिसकी हयात अगर बाकी है तो पानी के अंदर पानी से निकाल दिया जाए तो मर जाया करती है, ऐसे ही जिस इंसान के आज़ाए बदन को जिक्र इलाही में सुकून पाने की आदत पड़ जाएगी, जब जिक्र इलाही से दूर किया जाएगा तो मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है अपने जिस्म के हर आज़ा को जिक्र इलाही से सुकून हासिल करने वाला बना दे। जब हम ये आदी बन जाएंगे इंशाअल्लाह फिर हमें किसी को बोलने और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदान की आवाज सुनकर के हम खुद ही मस्जिद गुलशन तैयबा में पहुंच जाएंगे। अदान की आवाज सुनने के बाद हम खुद ही मस्जिदों की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। अज़ीज़ान मिलते इस्लामिया, आज आपके सामने मेरी यही दावत फिक्र है, खुदा यहाँ से कुछ फिक्र लेकर के उठाओ, यहाँ से कुछ फिक्र लेकर के उठाओ, ये खुद भी नेक बनेंगे और दूसरों को भी नेकी की दावत देंगे इंशाअल्लाह, तमामी हज़रात देंगे। नौजवानों बिल्कुल तुमसे मेरी ये गुजारिश है कि खुदा आज तुम्हारे जवानी को इस्लाम की इस्लाम को जरूरत है। इस्लाम आज जो है तो मैं इससे पहले भी शायद आपको सुना चुका हूँ कि इस्लाम वो इस्लाम, अल्लाह अकबर, ये कहने वाले ने कहा है, ऐ खास है खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आज अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। आज हमारा मजहब इस्लाम एक गरीब की तरह हो गया है, यतीम की तरह नजर आने लगा है। आखिर क्यों है? इसलिए कि हर धर्म मजहब के मानने वाले उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी तबलीग करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए शबो रोज मेहनत कर रहे हैं। और हम इस्लाम के मानने वाले हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाए तो बताइए इस्लाम कमजोर नहीं हुआ तो और क्या होगा। और इस मुसलमान की जिंदगी बाकी है इस्लाम के बाकी रहने से। अगर इस्लाम मिट गया तो मुसलमान रह ही नहीं सकता है। इसलिए इस्लाम को बाकी रखने के लिए मुसलमानों को जो है तो मैदान अमल में आने की जरूरत है। अरे मुसलमानों, इस्लाम के झंडे को बुलंद करने वाले बन जाओ। बड़ा मुबारक महीना है ये, यही वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रुए ज़मीन पर पैगाम हक को फैलाने के लिए अपने हबीब अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। आपकी विलादत मुबारक इसी महीने रबीउल अव्वल की 12 तारीख पे हुई है, तो 12वीं शब में हुई है। इस मुबारक महीने में यह करो इंशाअल्लाह हम जो है तो जिंदगी में कभी नमाज कदा नहीं करेंगे, कभी सज्जे से मुंह नहीं मोड़ेंगे,
कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे, इस्लाम के झंडे को बुलंद करेंगे। बेशक मुसलमानों की शान उसी में है, जो इस्लाम अगर बुलंद है तो मुसलमान का सर भी बुलंद है। अगर इस्लाम का झंडा सर निगो हो गया तो मुसलमानों को सर उठाने की कोई कभी नौबत न मिलेगी, कभी मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए कुर्बानियां देने की जरूरत है। अपने नफ्स को जो है तो इस तरीके से जो नफ्स के साथ जिहाद करके अपने नफ्स को कुचलने की जरूरत है, नफ्स की पैरवी छोड़ने की जरूरत है, अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करने की जरूरत है। आ जाओ अपने आप को आशिक रसूल बनाने के लिए, अपने आप को दीवाने रसूल बनाने के लिए मैदान अमल में आ जाओ। फकत जो है तो सुनकर चले जाने से काम होने वाला नहीं है, बल्कि सुनकर अमल करने से काम बनेगा। अगर मेरे दोस्तों, अगर मैं इस वक्त में पूछ लूं अल्लाह पर अभी मैं पूछ लूं कि कितने लोग हैं जो ईशा की नमाज पढ़ करके आए हैं, तो शायद बहुत कम लोग ही होंगे, और मेरे ख्याल से नौजवानों में इसकी बहुत कमी पाई जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं माजरत के साथ यहाँ आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा। मैं माजरत के साथ इतना कहूंगा कि अगर कहीं किसी ऐसे मजमे में कहीं दावत का प्रोग्राम रहे और कोई कह देगा भाई जो लोग खाना नहीं खाए वो चल के पीछे खाना खा ले, तो आधा मजमा खाली हो जाएगा। लेकिन जब नमाज का मामला, अभी जानते हो ईशा का वक्त अभी बाकी है, सुबह सादिक तक ईशा का वक्त रहता है। अगर मैं ये कह दूं कि भाई जाओ, अगर गुस्ल से है तो वजू करके ईशा की नमाज पढ़ लो, मस्जिद के दरवाजे अगर बंद हो गए हैं तो अपने घर में जाके पढ़ लो, तो शायद कुछ लोगों को ये बात गिरा लग जाएगी, अरे ये ठंडी के मौसम में सही भाई कह रहे जाओ वजू करो और नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह कल से पढ़ूंगा, कल जुमा का दिन है और कल से जो शुरू करूंगा तो आखिरी दम तक पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, ऐसा तो बंदा कह लेगा। मगर अक्सर को ये बात गिरा गुजरेगी, यार अभी कैसे जाऊं, अभी तो मैं नापाक हूँ। मेरे नापाकी जो है कहीं ऐसा ना हो कि रहमत खुदा से हमें दूर कर दे, क्योंकि रिवायतों में आता है कि जो लोग जो है तो जिन पर गुस्ल फर्ज होता है और बगैर गुस्ल के रहते हैं, उनके पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, उनके पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसलिए नापाकी का ये बहाना, ये नापाक रहने की आदत को छोड़ दो, हमेशा जो है पाक साफ रहने की आदत डाले इंशाअल्लाह, हमेशा पाक साफ रहेंगे इंशाअल्लाह। रहमत खुदाबंदी हर कदम पर हमारा सहारा बनेगी, हर कदम पर हमें जो है तो खुशामदीद कहेगी रहमत खुदाबंदी। आज जरूरत इसी बात की है कि हम अल्लाह के जिक्र में अपने दिल का सुकून तलाश करने की कोशिश करें। जानते हो वो नबी रहमत अलैहिस्सलाम जब जो है तो आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, मगर उस वक्त में हमारे आका मौला अलैहिस्सलाम ने, जानते हो ये डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरा कलमा पढ़ो, बल्कि आपने पहले अपनी सदाकत को मनवाया, अपनी सच्चाई को मनवाया, और पहली दावत जो आपने पेश की तो आपने इस तरह से पहाड़ पर जा करके लोगों से यही कहा, ये लोगों अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, एक बहुत बड़ा दुश्मनों का लश्कर आ रहा है जो हम पर हमला आवर होने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तमाम उस वक्त के जो तो हाज़रीन ने, अरब के रहने वालों ने यही कहा था कि बेशक आप कभी झूठ नहीं बोले हैं, आप अगर ये कहेंगे तो हम आपकी बात को मान लेंगे। मेरे दोस्त, जब लोगों ने ये तस्लीम कर लिया तब आपने कहा कि लोगों सुनो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ मुझको नबी और रसूल बना करके भेजा है, लिहाजा मैं तुमसे ये कहता हूँ कि इस तरीके से बुत परस्ती को छोड़ दो और बातिल परस्त खुदाओं को पूजा करना छोड़ दो, बल्कि अल्लाह वहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ो, मुझे उसका रसूल और नबी मान लो। और जो मैं कहता हूँ उस बात को, जो उस कलमे को पढ़ लो, उसमें बहुत सारे लोग फौरन उठ करके जाने लगे और चले गए, और जो मुंह में आया, यहाँ तक की बात में है कुछ लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी और चले गए। हालांकि उसमें तो कुछ उनके साथ में रहने वाले थे, कुछ उनके खानदान के लोग थे, कुछ कबीले के लोग थे, वो हिजाज मक्का के रहने वाले भी उस वक्त में फौरन तो अक्सर उसमें से बरहम हो गए, बस सिवाय चंद के वहां पर लोग बाकी रह गए, और वो लोग भी बाकी इसलिए रह गए कि क्या इसी के लिए हमको बुलाया था? मेरे दोस्तों, खुदारा मेरे दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम का ये पैगाम हक उस रोज तो ऐसा नहीं हुआ कि सैकड़ों दाखिले इस्लाम हो गए, मगर ऐसा असरअंदाज हुआ आपका वो कलमा, और आपने ऐसी जुर्रत और हिम्मत के साथ अल्लाह के पैगाम को सुनाना शुरू किया कि एक एक करके, एक के बाद दीगरे, जब लोग दाखिले इस्लाम होते गए तो जो दाखिले इस्लाम होता वो एक शख्स जो होता, वो रिवायतों में आता है कि एक शख्स जो होता वो 10 पर भारी पड़ने वाला होता, क्योंकि अब तक था उसके पास सिर्फ जिस्मानी ताकत होती थी। अरब का लंबा तरंगा
इंसान जरूर होता था, एक अरबी जो है तो वसाकता हासिल करने वाला इंसान जरूर होता था, मगर वो जिस्मानी ताकत तो रहती थी, ईमानी ताकत नहीं रहती थी। जब वो दाखिले इस्लाम होते तो उनके साथ जिस्मानी ताकत के साथ साथ ईमानी ताकत भी हो जाती, तो एक के बदले वो 10 की ताकत रखने वाले हो जाते। मेरे दोस्तों, आज भी मैं गुजारिश करूंगा कि हमें चाहिए, हम अगर इस तरीके से वाकई तमाम गुनाहों से तौबा करके सच्चे पक्के आशिक रसूल बनने की कोशिश में लग जाएं, इंशाअल्लाह हमारी तवानाई कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। गुनाहों के सबब से जो हमारे आज़ाए जिस्मानी कमजोर हो गए हैं, हमारा दिल कमजोर हो गया है, हमारी ज़बान कमजोर हो गई, हक बोलने की ताकत हमें नहीं मिल रही है, अगर हम इससे तौबा करके और पक्के आशिक रसूल बनने की कोशिश में लग जाएं, इंशाअल्लाह यही ज़बान हक बोलने वाली बन जाएगी, यही हमारे हाथ, यही हमारे बाजू जो है इस्लाम के लिए फिदा होने वाले बन जाएंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों, जब लोग आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता दाखिले इस्लाम होते गए और कुछ लोगों की सहाबे किराम की तादाद बढ़ी। एक रोज का किस्सा है, वाकया ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को जमा करके उनके सामने कुछ जो है तो पुराने जमाने के पुरानी कौमें के हालात बयान करना शुरू किया कि लोगों सुनो, पहले लोग ऐसे रहा करते थे, पहले लोग वैसे रहा करते थे, और इस तरीके से अरब में रहने वाले ऐसे ऐसे हैं, इस चीज को अल्लाह नापसंद फरमाता है। इस तरह से आप इस्लाम ने बयान फरमाया कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो अपने छोटों पर रहम नहीं करेगा उस पर अल्लाह भी रहम नहीं करेगा, जो अपने बड़ों की ताज़ीम नहीं करेगा उसकी भी ताज़ीम नहीं की जाएगी। ये इस तरह से बयान करते करते आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को रग़बत दिलाई, ये अरब के रहने वालों, जो छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को कत्ल करने वालों, इन बच्चों को आखिर इन बच्चों का क्या कसूर है, इन्हें तुम क्यों कत्ल करते हो, इसको छोड़ दो, ये बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है, अल्लाह ताला इसको बहुत नापसंद फरमाता है। और जिनके घर में अल्लाह ताला के फजल से किसी बच्ची की विलादत होती है, उसके घर में अल्लाह की रहमत बरसती है, और जो बच्चियों को पाल पोस करके बड़ा करता है, फिर उसके हाथ पीले करके उसकी शादी करके निकाह पढ़ाकर उसको उसके शौहर के साथ विदा कर देता है, अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। और जिसने दो जो है तो बच्चियों को जो है तो इस तरीके से परवरिश की और उसकी शादी करके उसको उनके शौहरों के साथ विदा कर दिया, उसको अल्लाह ताला दो जन्नत अता फरमाएगा। इस तरह से आकर इस रास्तीन बच्चियों की मोहब्बत और रग़बत दिलाने की खातिर ये तमाम जो है तो फरमाने रसूल जो है तो लोग को सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतने में एक सहाबी रसूल थे जो है तो दाखिले इस्लाम होने से पहले उन्होंने कई बच्चियों को अपने हाथों से कत्ल कर दिया था, अपनी कई बच्चियों को अपने हाथों से कत्ल किया था। गालिबन उनका नाम जो है तो आसिम इब्न कैस था। उन्होंने सुना तो सुनते रहे, नबी अलैहिस्सलाम बच्चियों की मोहब्बत और सब्र की खातिर बयान कर रहे हैं और सुन करके रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। उन्होंने जो है तो यहाँ तक कि आंसू बरसते बरसते उनको हिचकियां शुरू हो गई, उसी मजमे सहाबे किराम में रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे और आंसू बहने लगे। तो लोगों ने पूछा कि आखिर तुम क्यों कर रो रहे हो, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम की तवज्जो भी उनकी तरफ हुई। आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आए आसिम आखिर तुम क्यों कर रो रहे हो, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप ना होते तो न जाने कब तक गुनाह में डूबे रहते, आप अगर ना आते और ये दावतें हम तक ना पेश किए होते तो न जाने कब तक हमारे हाथों से बच्चियां इस तरह से कत्ल होती रहती। मैंने जो है तो हालत कुफ्र में अपने एक दो नहीं बल्कि मैंने 5-5, 6-6 बच्चियों को कत्ल करके और जो है तो जमीन में दफन कर दिया। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप जब बच्चियों के ताल्लुक से आज ये बयान फरमा रहे हैं तो मुझे अपनी उन बच्चियों का कत्ल करना याद आ गया और वो प्यारी प्यारी उनकी शक्लें मेरी निगाहों के सामने घूमने लगी हैं। मैं उनके शक्लों को याद करके रोने लगा हूँ कि मैं कितना कैसा जल्लाद था उन दिनों में और मेरा दिल कैसे पत्थर का हो गया था उन दिनों में कि मैं अपने हाथ से अपने बच्चियों को कैसे दफन किया होगा। ऐ काश की आपकी जो है तो जबान से आपकी जो है ये बात मुझे पहले मालूम पड़ गई होती तो शायद मैं एक भी बच्ची को दफन न किया होता। इस तरीके से बताते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं कि यहाँ तक कि मेरी एक बच्ची जो कि सिन्ने शौर को पहुंचने वाली थी, जो काफी बड़ी हो गई थी, दरअसल मामला यह हुआ कि मैंने अपने 5-5 बच्चियों को अपने हाथों से दफन कर दिया और कत्ल कर दिया। एक मरतबा यूं हुआ कि मैं कहीं सफर पर जाने वाला था, तजारती सफर पर जाने वाला था और मेरी बीवी का उस वक्त है तो मेरी बीवी उस वक्त उम्मीद से थी, उसके बदन में उसके शिकम में मेरा नुत्फा करार पाया था और बच्चा परवरिश पा रहा था और मैं कहीं सफर तिजारत को जाने वाला था। जाने से पहले मैंने अपने बीवी को बुला करके उसको ताकीद की कि सुनो अगर यहाँ पर तो मेरे जाने के बाद अगर कोई लड़का पैदा होगा तो उसको जिंदा और बाकी रखना और मेरे गैर मौजूदगी में अगर कोई बच्ची कोई लड़की पैदा होगी तो उसको ले जाकर के पहाड़ की ऊंचाई से फेंक देना या खड्डा खोद करके दफन कर देना, उसको जिंदा मत रखना। बीवी ने
मेरी बात सुन करके जो तो ना चाहते हुए भी उस पर हामी भर ली, ठीक है ऐसा ही करूंगी, अगर लड़का पैदा होगा तो बाकी रखूंगी और अगर लड़की पैदा होगी तो उसको मैं दफन कर दूंगी। और मैं इत्मीनान के साथ अपने सफर पर चला गया। कई महीने गुजर गए सफर के हालत में। उसके बाद उसने कहा, हजरत आसिम ने रो रो करके बताया, हुआ यूं कि कई महीने के बाद जब मैं अपने घर वापस आया तो अपनी बीवी से मैंने पूछा कि बच्चे का क्या हुआ, क्या लड़का पैदा हुआ था या कि लड़की पैदा हुई थी। तो मेरी बीवी ने बताया कि एक निहायत ही कमजोर सी बच्ची पैदा हुई थी और मैंने उसको जो है तो दफन कर दिया, पहाड़ की ऊंचाई से जाकर के फेंक दिया। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि बात आई गई खत्म हो गई और मैंने उसके बात पर यकीन कर लिया। मगर हुआ ये कि उन दिनों फिर मैं दोबारा अपने घर से इस तरह से कभी जाता और आता। मगर हुआ ये एक रोज जब मैं अपने घर से बाहर गया था और ये सोच कर गया, ये कह कर गया था कि मैं कई दिनों के बाद वापस लौटूंगा, मगर कुछ जो है तो इस तरीके से जाना मंसूख हो गया तो मैं जल्दी ही अपने घर वापस आ गया। कई दिनों के बजाय एक ही 2 दिन में मैं अपने घर वापस आ गया। लेकिन जब आकर मैं अपने घर के करीब पहुंचता हूं, अपने घर में दाखिल होता हूं, तो क्या देखता हूं कि मेरी बीवी जो है तो एक बच्ची को उसको बाल में कंघी कर रही है, उससे प्यार कर रही है, उससे दुलार कर रही है। मैं देखते ही मेरे अंदर का शैतान जाग उठा और मैंने फड़क करके नहायत ही गुस्से में अपनी बीवी को पकड़ करके उठा दिया और कहा कि किसकी बच्ची है मेरे घर में परवरिश पा रही है, ये तू क्या कर रही है। तो उसने, मेरी बीवी ने ना चाहते हुए बहुत रो रो करके उसने बताया कि नाराज मत हो, मैं अभी तुमको हकीकत बताती हूँ। दरअसल ये किसी और की बच्ची नहीं है, ये तुम्हारी ही बेटी है, ये तुम्हारा ये खून है। जब तुम सफर पर गए थे उस वक्त में कोई कमजोर सा बच्चा नहीं बल्कि यही बच्ची पैदा हुई थी जिसको मैंने जो है तो बचा रखा था। आखिर मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ अपने हाथों से अपनी बच्ची को दफन कैसे कर सकती थी, अपने बच्ची का कत्ल कैसे कर सकती थी। मेरे अंदर की ममता जाग उठी और मैंने इस बच्ची को संभाल के रख लिया, इसकी परवरिश की। जब मैंने देखा कि अब तुम आने वाले हो, जब मुझे इत्तला हुई कि तुम आने वाले हो, तो मैं अपने पड़ोस में रहने वाली यहूदन को ये बच्ची दे दी और उससे कहा कि जब मेरा शौहर आएगा तो इसे तुम अपने पास रखना और जब मेरा शौहर मेरे घर से कहीं जाएगा तो मैं अपनी बच्ची को ले लूंगी, अपने घर में रखूंगी। इसी तरह से तुम कई बार आते रहे जाते रहे, यहाँ तक कि इस सिलसिला में 5 से 6 बरस गुजर गए और ये बच्ची इस तरह से परवरिश पाते पाते अब तो इतनी बड़ी हो गई है। अब तो देखो ये अब्बा और अम्मा कहने लगी है, मुझे अम्मा कहती है, तुम्हारे बारे में अब्बा अब्बा कह करके मुझसे पूछा करती है। ये बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बोलती है, बहुत अच्छा इसका नक्शो निगार है, लिहाजा तो इस पर जुल्म ना करो, इस पर ज्यादती मत करो, इसे कत्ल मत करो। हजरत आसिम इब्न कैस ये बयान कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं कि मेरे अंदर का वो शैतान, वो मेरे पत्थर दिल पर इस तरीके से असरअंदाज हुआ कि मैं उससे जो है तो बाज ना आया बल्कि अपने बीवी के जो है तो पहलू से अपने बच्ची को छीन लेता हूँ और छीन करके उस बच्ची को लेकर के गया और जंगल की तरफ गया और वहां जाने के बाद अपनी बच्ची को जो है इस तरीके से जगह पर बिठा दिया डांट करके और फावड़े से मैंने वहां खड्डा खोदा। खड्डा खोदता रहा तो मेरे जब जिस्म पर, मेरे लिबास पर जब मट्टी के शब्द उठते और मट्टी जब पड़ती तो मेरी बच्ची दौड़ करके आती, उसको झाड़ती, अब्बा जान क्यों खड्डा खोद रहे हो, देखो तुम्हारा लिबास गंदा हो रहा है, चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं। वो मेरी बच्ची इस तरह से कहती तो मैं उसको डांट करके बिठा देता कि मनहूस कहीं की बैठ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कब की बात है मुसलमानों, जरा गौर से सुनना, ये उस वक्त की बात थी जब जो तो इस्लाम आया नहीं था, उस वक्त की बात है जब हमारे आका ने ऐलान नबूवत नहीं जो तो फरमाया था, ये उस वक्त की बात है जब जिक्र खुदा से लोग दूर हो चुके थे, ये उस वक्त की बात है जब लोगों का सुकून जो है तो छिन चुका था दिल का, जब लोगों ने जो है तो अपने दिल का सुकून शराब नोशी में जो है तो हासिल करना, अय्याशी में और कट्टोकारी में हासिल करना शुरू कर दिया था। ये उस वक्त की बात है, ये आज की बात नहीं है, ये पैगाम इस्लाम सुनने वालों के बाद की बात नहीं है। बहर के उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मुझे वही सोच सोच करके रोना आ रहा है कि मैं कैसा जालिम था उस वक्त में, अगर आप ना आए होते तो मेरे जुल्म की इंतहा ना होती, मगर आपने आकर के बहुत अच्छा हुआ कि आपने जो है तो मुझे ये जुल्म से बाज रखने की, ये जो है तो मुझको बाज रखने की, रहने की तलकीन करके मुझे जुल्म से बाज रख दिया। मेरे दोस्तों इस तरह से वो कहते रहे और रोते रहे। फरमाते हैं कि फिर मैंने उस बच्ची को, जब गड्ढा मैंने खोद लिया, बच्ची को अपने हाथों से पकड़कर उस गड्ढे में मैंने डाल दिया और बच्ची को गड्ढे में डाल रहा हूँ। बच्ची चिल्ला रही कि अब्बा ये क्या कर रहे हो, अब्बा ये क्या कर रहे हो, अम्मी जान मुझे बुलाती है, अब्बा तुम क्या कर रहे हो, अब्बा देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या गुनाह किया है, आखिर मुझे इसमें क्यों दफन कर
रहे हो? आखिर मुझ पर मट्टी क्यों डाल रहे हो? मैं मर जाऊंगी, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इस तरीके से वो जो है तो बच्ची चीख रही थी, मगर मेरे जालिम हाथ जिनका सुकून उसी में हासिल करने की कोशिश करता था, मेरे जालिम हाथ ना रुकते थे। हत्ता कि मैंने अपनी उस नन्ही से फूल जैसी मुस्कुराती चीखती चिल्लाती बच्ची को उस गड्ढे में मैंने मुकम्मल दफन कर दिया। अब दफन करने के बाद आखिर मैं भी तो इंसान ही था, मेरे सीने में भी तो एक दिल था। जब मैं वहां से लौटता हूं तो मेरा दिल मुझको जो है इस तरीके से मलाल करता है, जो है तो इस तरीके से मेरा दिल जो है तो मुझको मलामत करता है। और मैं चलता हूं तो मेरे कदम ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई मेरा पैर थाम लिया है, कोई मेरा पैर पकड़ लिया है, मेरा पैर वहां से उठ नहीं रहा है। और बार बार ऐसे लगता था कि जैसे मेरी बच्ची पीछे से आवाज दे रही है कि अब्बा मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो, अब्बा तुम्हारे बिना मैं यहाँ कैसे रह सकूंगी। और या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम वही सब सोच करके मैं वापस आ रहा हूँ। और वहां से आने के बाद मैंने अपने बीवी को जो है तो आकर के बहुत जो है इस तरीके से ज़ोर किया, उससे कहा कि आइंदा खबरदार ऐसी गलती नहीं करना। अरे या रसूलुल्लाह आपका पैगाम अगर हम तक ना पहुंचता तो हमारे जुल्म की इंतहा ना होती, बल्कि इंतहा हमारी मौत पर होती। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अज़ान इस्लामिया उस प्यारे आका की प्यारी प्यारी बातें जो ऐसे पत्थर दिल लोगों ने सुना तो इंसान बन गए, इंसानियत के पैकर बन गए और इस्लाम के जो है तो पैरोकार बन गए। ऐ मुसलमानों, आज हमारे दिल को क्या उससे ज्यादा पत्थर हो गया हमारा दिल? क्या हमारा दिल उससे ज्यादा सख्त हो गया है? नहीं नहीं नहीं, हमारा दिल तो कलमा पढ़ने वाले का दिल है, हमारा दिल तो इस्लाम के पैरोकारों का दिल है। हमारा दिल और हमारे जिस्म हमारे रगों में बहने वाला खून किसी मुसलमान का खून है। हमारे माँ बाप मुसलमान है, उनके माँ बाप तो कुफ्र इल्हाद में और शिर्क में रहने वाले थे। अगर आज हम मेरे दोस्तों आज अगर हम भी वैसा करें, उस वक्त की बात ये थी, अब ये आखिरी बात मैं ये अर्ज कर दूं, उस वक्त की बात ये थी कि जब किसी के घर में बच्ची पैदा होती थी तो लोग उसको कत्ल करते थे, दफन करते थे। मगर हाय अफसोस, आज जानते हो माहौल में क्या क्या हो रहा है। आज बहुत सारे घरों में वो सोनोग्राफी के जरिए से या किसी और टेक्निक के जरिए से जब ये मालूम करते हैं कि पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा जो है वो लड़का नहीं लड़की है, तो पहले तो लोग पैदा होने के बाद कत्ल करते थे, अब पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दे रहे हैं। आप जो है वो रश्म करा करके पहले ही उसको जाया कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मुसलमानों, रिवायतों में आता है, इस्लाम की तालीम सुन लो कि अगर 4 महीने हमल के मुकम्मल हो जाने के बाद अगर किसी ने हमल को जाया किया, एक जिंदा इंसान को कत्ल करने का गुनाह उसके सर पर जो तो होगा, एक जिंदा इंसान को कत्ल करने का गुनाह उसके सर पर होगा। इसलिए खुदा राय से गलतियां ना करें। जो रब हमें खिलाता पिलाता है वही पैदा होने वाले को वही खिलाएगा पिलाएगा। हम इससे हरगिज़ जो है तो दिल बर्दाश्त ना हो और हरगिज़ चीज से जो है तो हम इस तरीके से अपने आप को इतना कमजोर ना समझे, बल्कि अल्लाह ही तबारक व तआला वही परवरिश करने वाला है, वही रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का पालनहार वही है, वही पूरा करने वाला है। अज़ीज़ान इस्लामिया, अब ये मैं एक अर्ज कर दूं कि आज अगर बीमारी वही लग गई है जो 14 साल पहले थी, तो इलाज भी वही होना चाहिए। उस वक्त के लोगों को, ऐसे बीमार लोग जो बीमारी में मुब्तला होकर अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल करते थे, ऐसे बीमार लोग जो काबे के आगे जाकर नंगा नाच नाचा करते थे, शराब नोशी किया करते थे, जब उनका इलाज जिक्र खुदा और रसूल में हो गया तो आज हमारा इलाज भी जिक्र खुदा और रसूल में हो जाएगा। जब बीमारी वही है तो इलाज भी वही होगा। इसलिए इलाज उसी तरीके से करने की जरूरत है। खुदा रा कहीं रफ्स व सुरूर की मजलिस में जाने की कोशिश ना करें। दिल का सुकून है तो अल्लाह ने फरमा दिया, अला ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने दीन का पक्का सिपाही बनने की तौफीक अता फरमाए और हमारी माँ और बहनों को और इस्लाम के मुकद्दस शहदादियों को अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस जो है तो अपने मुकद्दस बंदियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हज़रात के सामने आखिरी बात ये एक ऐलान की शक्ल में है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद व मदरसा गुलशन तैयबा जो आपके मोहल्ले से चंद कदम पर है, यही आज़मी नगर में है, वो अपने तरक्की की तरफ गामजन है और उसमें मकतब भी जो मदरसा चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 बच्चे उसमें ज़ेर तालीम हैं, हिफ्ज़ वाले भी हैं, नाज़रा वाले भी हैं। और नाज़रा तालीम हासिल करने वालों के ताल्लुक से कुछ वहाँ पर वसूल ज़वाबित जो बनाए गए हैं कि जो बच्चे या बच्चियाँ वहाँ पढ़ने के लिए आए, उनके लिए जो यूनिफॉर्म, जो लिबास, ड्रेस की शक्ल में दिया जा रहा है, उसको हासिल करने की कोशिश करें और अपने बच्चों को
तआय्युन शुदा वक्त यानी वक्त मुकर्ररा पर वहां भेजने की कोशिश करें। कोई कभी भी आगे पीछे आते हैं, मुदर्रिसीन को उसमें पढ़ाने में तकलीफ होती है और सबको इस तरीके से जो उस पे कंट्रोल करने में भी तकलीफ होती है। इसलिए गुजारिश आप तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह इस गली से, इस मोहल्ले से काफी बच्चे पढ़ने के लिए वहां आते हैं हंडी का पहुंच से। आप लोगों से गुजारिश है उनको वक्त के पाबंदी के साथ भेजने की कोशिश करें। सुबह में 8 बजे से 10 बजे तक का वक्त है, दोपहर में ज़ोहर की नमाज के बाद यानी 2 बजे से 4 बजे तक का वक्त है, और शाम में जो है मगरिब की नमाज के बाद से लेकर के ईशा की अजान तक का वक्त है। लिहाजा आप तमाम हज़रात इन वक्त के पाबंदी के साथ अपने बच्चों को वहां भेजने की कोशिश करें। और जानते हो इस बड़े जो है तो अदारे को और इस जो है तो 5 स्लैब वाले 4 मंजिला इमारत को, इसको सजाना, इसको संवारना, इसको जो है तो बुलंदी तक, कामयाबी के बुलंदी तक पहुंचाने में अभी बहुत कुछ कमी बाकी रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां कहीं प्रोग्रामात होते हैं इस तरह से वहां आखिर में ऐलान करके लोगों का ताउन हासिल करने की कोशिश की जाती है। आपके सामने भी मेरी ये थोड़ी सी गुजारिश है, ये चादर फैली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने पहले ही दामन फैला दिया है। ये चादर फैली हुई है मस्जिद गुलशन तैयबा, जो दीन का एक किला है, जो इस्लाम का एक किला है, जहां मस्जिद भी है, मदरसा भी है, तरबियती कैंप भी है, और जहां पर इस तरह से तरबियती नशिस्त वगैरह सब कायम की जाती है, उसको जो है तो कामयाबी का रोज तक पहुंचाने के लिए आप सबके ताउन की बेइंतहा जरूरत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है जो भी आप ताउन कर सकते हैं अपने अपने जगहों से उठें और यहाँ अपने जगहों से आगे वालों से भेज करके इस तरीके से यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और अल्लाह के हबीब का वादा है कि बेशक अल्लाह की राह में कोई एक देता है, अल्लाह उसको 70 गुना अता फरमाता है। अल्लाह इसके सदके में हमारे घरों से बेबरकती को दूर फरमा दे, अल्लाह इसके सदके में हमारे घरों से तंगदस्ती को दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह। और इस किले को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आप सबके ताउन की बेइंतहा जरूरत है। लिहाजा गुजारिश है कि आप बढ़ चढ़ करके हमेशा इसमें हिस्सा लेते रहे और हमेशा लेते रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस तरह से हर नेक काम में, हर नेक मजलिस और महफिल में शिरकत करने की, शामिल होने की तौफीक अता फरमाए।